कहाँ घराना से गालियाँ। ये हर बार क्या नई नई चीजें मिल रही है। घराना से गालियाँ, एक वो सितार से कटार मिला था हाँ, और एक गाने से बजाना मिला था। वाह, ये तो कमाल हो रहा है यार, क्या लाइनें मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में वो अपने लाइफ का हीरो होता है, ठीक है, चाहे वो अपने जिंदगी में सोशली अच्छा काम कर रहा हो या बुरा काम कर रहा हो या काम कर ही ना रहा हो, वो इंसान अपनी जिंदगी का हीरो है और उसकी जिंदगी का सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट वही है। नेम 3 मूवीज where सलमान खान played प्रेम। मैं प्रेम की दीवानी हूँ। प्रेम की दीवानी में सलमान खान प्रेम तो है। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और मैंने प्यार क्यों किया भी? ओ मैंने प्यार क्यों किया? मैं प्रेम की दीवानी में कौन था? अभिषेक बच्चन। I got obsessed with recently. वो Black Mirror था. I really liked the show. I think the actors did a fantastic job. Black Warrant. I really thought it was an amazing show. Oh sorry, I said Black Mirror. I was really confused. Sorry. Black Warrant. यार ये मैंने सोचा कि Black Mirror ही होगा. I think the new season comes Black out. Warrant. Hi everyone, this is your host Riya and today I am in conversation with the cast and maker of Khaki, the Bengal chapter, Adil, Devatma and Ritvik. Welcome to Instant Bollywood. Thank you. Thank you. First of all, congratulations, it happened. And मुझे पता नहीं था कि कोलकाता में भी अंडरवर्ल्ड हो सकता है. But first of all, I'm going to ask you कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है ये स्टोरी, तो इसके फैक्ट चेक करने में कितना डीप यू हैव टू गो थ्रू, क्या चैलेंजेस कुछ फेस किए आपने? काफ़ी डीप, यू नो, क्राइम अंडरवर्ल्ड अंडरबेली जैसा जो सिस्टम है वो ढूंढने के लिए बहुत ऐसा कुछ सर्च करना नहीं पड़ता. अच्छा. आई थिंक जो कैलकाटा में है उनके आसपास ये दिखता है कुछ चीज़ें जो है. अपार्ट फ्रॉम अगेन आई हैव बीन टेलिंग दिस कि इट्स नॉट अ टेलिंग जहाँ पे हम वो दिखाने की कोशिश किए कि देखो कैलकाटा कितना अनसेफ है या है. एवरी सिटी हैज़ एन अंडरबेली, एवरी सिटी हैज़ क्राइम, देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्राइम इन एवरी सिटी. What we wanted to do is just explore that. We always felt that Kolkata has not been explored enough, or this side of Kolkata had not been shown in much detail. So उसको research करने के लिए obviously the writing team, Neeraj ji, Somrat Chakraborty, who's the other writer for the show, we started off with one small germ that Neeraj ji had कि there is this incident, let's research upon it. So after that what happened is I went to Kolkata for a while, did a lot of research, met with one of the researchers, a very renowned crime journalist from Kolkata. His name is Shurbek Biswas. So there was a lot of bouncing of incidents and events and incidents that I know, that he knows, that we felt were cinematic, were big enough, good enough to be told in a story like this. Although this story is absolutely fictional, but it cannot be devoid of reality. Okay, it's not based on real events? It is not based on real Acha. events, but it takes references from everything around you. I mean, I am pretty sure that people from Kolkata, from Bengal, who've watched the show, and people from Bengal who will watch the show will find a reflection of the lives around them. Okay. We all grow up with stories. We've all grown up with incidents. We've all grown up reading newspapers, from stories from your parents, grandparents. I mean, they would find a reflection of something or the other. Only then it could be called a true Bengal story. I mean, unless it was grounded in reality, this couldn't have been made. आप कितना ही झूठ बोल लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब बॉम्बे की कहानी है और हम कलकत्ता में डाल रहे थे. To tell a very real, relatable story on Kolkata, we had to be there on ground, research, and even though it's a fictional story, it should still have the heart and emotion of what Kolkata is. Oh. So I think That's amazing, and guys loved your performance Thank as you. well. And आप tell me honestly, गुंडा वाले रोल ज़्यादा अच्छा करना लगता है या फिर heroic roles? दोनों के अपनी अलग खूबियाँ हैं, है ना? But crazy ज़्यादा excitement किसमें आती है? नहीं मतलब एक अगर आप एक एंटागनिस्ट या फिर आप एक गैंगस्टर का कैरेक्टर कर रहे हो तो उसकी खूबी ये रहती है कि उसमें क्योंकि आप मॉरल से बाउंडेड नहीं हो, आप इन सब से बाउंड, तो एक ज़्यादा उस जोन में थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ा लिबरेटेड है कैरेक्टर. तो एज एन आर्टिस्ट
वहाँ पर यू कैन प्लेस थिंग्स जो कि काफ़ी मसालेदार होते हैं, जो कि आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर में शायद प्लेस ना करोगे। लेकिन अभी आई ऑल्सो थिंक दैट वी आर इन दैट टाइम जोन जहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ एक ग्रे शेड वाला स्पेस है, जहाँ पर बहुत ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो कि जिनके अंदर सारे शेड्स हैं। तो जैसे ये सागो रंजीत में भी सारे इमोशंस हैं, सारे शेड्स हैं। उनका थोड़ा ग्राफ डिफरेंट हो सकता है और नज़रिया डिफरेंट हो सकता है इन दो किरदारों का, उन इमोशंस को देखने का, लेकिन काफ़ी ह्यूमन इमोशंस हैं। मतलब रंजीत के अंदर मॉरल्स भी हैं लेकिन डिफरेंट है, थोड़े ट्विस्टेड मॉरल्स हैं। रिलेशनशिप की वैल्यू भी है उसके अंदर हर्ट भी है, उसके अंदर फीलिंग ऑफ बिट्रेयल भी है, उसके अंदर ऑब्वियसली एंगर तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। तो वो तो दिख ही रहा है। तो सारे शेड्स हैं। तो और इसके साथ साथ अगर आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स को देखो तो उनमें भी कुछ दिखाते हैं ह्यूमन टेंडेंसीज के, थोड़ा ग्रे शेड हर इंसान में होता ही है। सो एज वी आर प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, we are bringing it as close as possible to human nature, which kind of creates a mix of both the shades, and it's a wonderful time that way. Amazing. And ऋत्विक, कहाँ घराना से गालियाँ? ये हर बार क्या नई नई चीजें मिल रही है। घराना से गालियाँ, एक वो सितार से कटार मिला था, हाँ, और एक गाने से बजाना मिला था। वाह, तो कमाल हो रहा है यार, क्या लाइनें मिल रही है। आपने इंस्टाग्राम का कैप्शन दे दिया है ना? मिल गई टैगलाइन। Tell me about the difference between the roles that you have played. ओ बाप रे, है ना? डिफरेंस ज्यादातर है ना? I काफी think डिफरेंस। दोनों किरदारों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों किरदारों को मैंने प्ले किया है। Of course. वो एक दूसरे से बहुत अलग है। Exactly. पोल्स अपार्ट है और लिटरली ज्योग्राफिकली भी एक एकदम एक्सट्रीम वेस्ट है और एकदम एक्सट्रीम ईस्ट Of है course. इस देश के, जो दो किरदार की हम बातें कर रहे हैं। बट आपने जो एक्साइटमेंट के बारे में पूछा था ना, कि हीरो वाले कैरेक्टर्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है या विलन वाले कैरेक्टर्स में ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो अपने लाइफ का हीरो होता है। ठीक है, चाहे वो अपने ज़िंदगी में सोशली अच्छा काम कर रहा हो या बुरा काम कर रहा हो या काम कर ही ना रहा हो, वो इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो है। उसके ज़िंदगी का सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट वही है और उसके लाइफ में जो चलते आ रहा है वो उस चीज़ को रिएक्ट करता है। बस उसी हिसाब से शागुर और रंजीत की ज़िंदगियों में वो अपने लाइफ के हीरोज़ हैं। वो किसी भी तरीके से ऑडियंस के लिए विलन्स हैं ऑफ कोर्स, बट जब हम एज एक्टर्स अप्रोच करते हैं तो हम पूरी तरीके से उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं। जैसे एक एक्टर है हावियर बारदेम, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि फॉर एन एक्टर you have to be your character's strongest defense lawyer. Yeah. Wow. You have to make sure that your character never loses the That's case. deep. तो हमारे लिए जैसे मेरे लिए शागोर हीरो है, उनके लिए रंजीत हीरो है, तो हमने अप्रोच भी उसी तरीके से की थी कि इस कहानी के हीरो हम ही हैं। हमने कभी विलेन के पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं, बट हाँ, जो चीज़ें शागोर कर रहा है वो चीज़ें दूसरी कहानी में दूसरा हीरो शायद ना कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें तो अलग है ही है। पॉइंट ये है कि हमें अपने काम में इतना एक्साइटमेंट मिलता है ना, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे गुड बॉयज प्ले करें, बैड बॉयज प्ले करें, चाहे बॉयज ही ना प्ले करें, जो भी है, हम जो भी तुम प्ले अपने आप में हीरो। हाँ, उसी में इतना मजा आता है कि आप उसी चीज को एक हीरोइक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। उसी में एक्साइटमेंट मिलती हाँ है। जी। दैट्स नाइस। कोलकाता के बारे में कोई ऐसी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ जो काफ़ी हद तक लोगों को पता नहीं है, जो आपको पता है? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर ये आपकी ब्लेसिंग भी होती है कि आप जब किसी दूसरे शहर में जाकर शूट करते हो तो आप सिर्फ वो टिपिकल टूरिस्टी जगहों पर नहीं जाते, आप शहर की गलियों में, शहर की ऐसी जगहों में जाते हो जो कि अदरवाइज अगर आप किसी शहर में जाओगे तो वैसी जगहों को विजिट नहीं करोगे। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द रियल ब्यूटी लाइज इन दोज प्लेसेस। ओह यस। तो वो कलकत्ता की जो खूबसूरती है, जो कि आप अगर जैसे एज अ टूरिस्ट जाएंगे तो जो देखेंगे, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा खुश नसीब हूँ क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर गए। मैं एक जो मेरा जो घर है, वो जो बिल्डिंग है वो दादा क्या कुछ 1 किलोमीटर स्ट्रेच का लंबा बिल्डिंग है वो। Yeah, एक it's बिल्डिंग quite a long one. Yeah. रियली? एक मतलब उसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें जैसे सड़क के साइड में हॉकर्स होते हैं जो बैठे रहते हैं, ऐसे फर्स्ट फ्लोर में ऐसे लाइन से हॉकर्स बैठे हुए हैं और आप वहाँ वॉक करते हो तो आफ्टर अ पॉइंट आप भूल जाते हो कि आप किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हो, ऐसा लगता है आप सड़क पे चल रहे हो क्योंकि वो सड़क ही लगती है। तो यू नो काइंड ऑफ बीइंग इन दोज प्लेसेस, ऐसी जगहों पर हमने वो जो वो गंगा के किनारे जो शूट करा था, अंदर जाके घुस के वहाँ पर, तो इट्स अमेजिंग यार बीइंग एन एक्टर कि आप ऐसी ऐसी जगहों को लोकेट करते हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसे रियल हार्ट में चले जाते हो शहर के।
सो आपका सवाल क्या था? Yeah, that's the interesting part. Even मैं भी बह गई। एक ऐसी चीज जो आप कलकत्ता के बारे में जानते हैं जो शायद कोई और ना जानते हो, जैसे कि आपने कहा कि the locations that you visit, correct, a lot of people don't visit those Yeah, places. that's the right answer, yeah. Yeah, absolutely, Exactly. बोलते भूल गया मैं जवाब किस चीज का देना था। Well, let's wrap it up with a fun segment. Segment है which is 5-second rule, जहाँ पर you have to name 3 things which I'm gonna ask you and you have to quickly give answer. Okay. Name 3 Bollywood songs with the word "dil" in them. दिल है कि मानता नहीं, दिल तो दिल चाहता है, दिल तो पागल है। Okay, quick one. Okay, that's one. Name 3 actors who recently or actors who recently debuted in this industry. New debutants. Yeah. This is Ibrahim Jeetda's Khan. Hindi OTT debut. Yeah. So Jeetda. correct, Jeetda. खुशी कपूर, इब्राहिम खान। ये बेस्ट है। Name 3 movies where Salman Khan played Prem. मैं प्रेम की दीवानी हूँ। प्रेम की दीवानी में सलमान खान। सलमान प्रेम तो है। हम आपके हैं कौन? मैंने प्यार किया। Okay. और मैंने प्यार क्यों किया भी? ओ मैंने प्यार क्यों किया? मैं प्रेम की Good दीवानी में one. कौन था? ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन। Okay. Yeah, even I was like, okay. Name 3 Bollywood movies that have a sequel. Easy. Bollywood movies that have a sequel. Golmaal. सिंघम, हेरा फेरी। Okay. Name 3 actors who have played a villain in a movie. संजय दत्त, बुम्बदा। विद्युत जामवाल, बुम्बदा। आप बस दोनों के साइड हो। मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा एक्चुअली खाकी के अलावा कुछ चल भी नहीं पा रहा। The 3 villains you said was Adil, was Ritwik and Bumbada. है ना? Name 3 Bollywood stars who are married. ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अनिल कपूर। Okay. Lastly, name 3 Bollywood movies based on real life events. वो कौन सी थी जो यार तुम्हें नाम से जो एयरलिफ्ट, धोनी। अरे धोनी, MS धोनी। और मैं सोच रहा हूँ हमारे यहाँ फ्राइडे में कितनी रियल लाइफ इवेंट्स द बिहार, खाकी द बिहार Oh chapter। yes. But Khaki के अलावा, if I'll ask you, which is that current thriller series or a project or a movie that you currently, obsessed with, apart from Khaki? Yeah, I'll tell you the show that I got obsessed with recently. वो Black Mirror था। I really liked the show. I think the actors did a fantastic job. I think it's shot beautifully, Really? it's directed beautifully. So that one show that I really liked in recent times. Okay, I have to watch it then. Please watch it. It's a fantastic show. Okay, what were you guys? Yeah, I just Not obsessed, but I've just finished. I just binged through Black Warrant. I really thought it was an amazing show. Oh, sorry, I said Black Mirror. I was really confused. Sorry, Yeah, Black yeah, Warrant. Black यार फिर ये मैंने ना सोचा कि सुबह से Black interview Mirror चल ही रहा है होगा. यार। I think the new नहीं, season नहीं, comes Black out. Warrant, Black Warrant। God. Yeah, I think. सुबह से interviews चल I think. रहा है। I think. Yeah, even I got confused. I think the book was great, but the show is even greater. It's quite nicely done, pretty dark, pretty. It's a good slow Yeah, burn. No? It gets it's to you. just- yeah. It's ऐसा लगता है कि जेल नहीं जाना. हाँ। नहीं जाना. What about you, Ritwik? Recent times, can I say an all-time favorite? Of course. गुप्त is my all-time favorite thriller. It is like मुझे याद है बचपन में कभी भी गुप्त अगर टीवी पे आ रही होती थी मैं सब कुछ कैंसिल करके बैठ जाता था वहाँ पे। ये अलग बात है कि टपली पड़ा और बोलते चल स्कूल जा। गुप्त का तो म्यूजिक भी What कितना music, evergreen huh? है यार। Soundtrack, amazing. Evergreen। Legend. Amazing. Well, thank you so much, guys. It was really, really nice having you, and all the very best for your Thank future, you. guys. Thank Thank you you. so much. Thank you. Hi, this is Ritwik Bhomik. Hi, this is Debatma. Hi, this is Adil Zafar Khan and you're watching us on Instant Bollywood.